جو فرشتے ہیں وہ گشت کرتے ہیں اور فرشتے جو انسانوں کے تابع ہیں، تو مجھے نا اس کا ایک ریفرنس دے دیں ذرا، تو اور مجھے ذرا یہ اچھے سے سمجھائیں کہ کس طرح تابع ہو سکتے ہیں فرشتے انسانوں کے۔ یہی سنا ہے کہ فرشتے جو خداوند کے تابع، خدا کے حکم سے وہ ہر کام کرتے ہیں، تو اس دن آپ نے بتایا تھا کہ انسان بھی ان پر حکمرانی کرتے ہیں اور وہ انسانوں کا حکم مانتے ہیں، تو پلیز ذرا مجھے ڈیٹیل سے تھوڑا آپ سمجھائیں گے۔ خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر نیل واشنگٹن ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اے میرے عزیزو، آج جو ہے میں آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح خدا کے کلام کی میٹھی میں ایک اور خوبصورت باتوں کو بیان کروں گا۔ تو آج خاص طور پر جو ہے میں اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں کیونکہ ہماری ایک بہت سی پیاری سی بہن ہے رابعہ، انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ فرشتے ہمارے تابع ہیں یا کس طرح سے ہمارے اپنے فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے تو خدا باپ کے ہیں اور ہمارے کون سے فرشتے ہیں، تو کائنڈلی اس کے متعلق ذرا ڈیٹیل سے بتا دیجیے گا۔ تو آج جو ہے یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارے اپنے فرشتے کون سے ہیں اور کیسے ہیں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ اس کے متعلق کیا بیان کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے میں خدا کے کلام کا بیان کروں، ریممبر دس، انسپائریشن از انسپائریشن، ورڈ از ورڈ۔ تو میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے اس بات کو بیان کروں گا کہ خدا باپ کے فرشتے جو ہیں وہ اپنے ہیں اور ہمارے فرشتے اپنے ہیں، اور وہ کیسے۔ تو میرے عزیزو، میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت۔ یوحنا پہلا باب اس کی 12 آیت۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، ہم نے ابھی یوحنا 1 باب 12ویں آیت کی تلاوت کی، تو اس میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا۔ کسے قبول کیا؟ یسوع مسیح کو قبول کیا، اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ اور جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، انہیں خدا کے یعنی باپ کے فرزند بننے کا حق بخشا گیا، اور انہیں خدا کے فرزند کہا گیا کہ وہ خدا باپ کے بیٹے ہیں جو اس کے بیٹے نجات دہندہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کیونکہ لکھا ہے کہ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، تو اگر اس بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوحنا 1 باب اور اس کی 13ویں آیت اور پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو یسوع پر اس کے نام پر ایمان رکھتے ہیں، وہ انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق دیا جاتا ہے، انہیں بخشا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں کچھ ٹھہراؤ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر میں ابن آدم اور آدم ذات پر بات کروں گا، کیونکہ یہ ایک تعلیمی اور علمی اور روحانی اعتبار سے ہمارے لیے ترقی کا باعث ہو سکتی ہے۔ تو میں ابن آدم اور آدم ذات پر بات کروں گا، پھر ہم مزید جو ہے آگے بڑھیں گے۔ اے میرے عزیزو، یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں 12 دفعہ خود کو ابن آدم کہہ کر مخاطب کیا، خود کو ابن آدم کہہ کر متعارف کرایا، اپنا تعارف جو ہے وہ ابن آدم کہہ کر کہا، جو ہے دوسروں کو بتایا کہ میں ابن آدم ہوں۔
اور دوسری جانب ایک اور ورڈ ہم دیکھتے ہیں جو ہے آدم ذات. یاد رکھیے گا پرانے عہد نامے کے اندر جو ہے زیادہ تر جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ آدم ذات استعمال ہوا ہے. ہاں زبور میں جو ہے وہ ایک دفعہ ہمیں پرانے عہد نامے میں ابن آدم کا جو ہے وہ ورڈ ملتا ہے. اس کے علاوہ آدم ذات کا ورڈ جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں ہمیں باکثرت نظر آتا ہے، جبکہ نئے عہد نامے میں ہمیں آدم ابن آدم کا استعمال جو ہے وہ ہمیں 12 دفعہ نظر آتا ہے. تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ابن آدم اور آدم ذات کیا ہے، ان دو ورڈز کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. یاد رکھیں کہ ابن آدم یعنی سن آف مین کیا ہے؟ ابن آدم سن آف مین. اور آدم ذات ہے وہ آدم ذات کا جو ورڈ ہے وہ مین کائنڈ یعنی انسانوں یا انسانیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ابن آدم جو ہے وہ ایک یونیک ہے، ایک یونیک جو ہے یونیک طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن آدم ذات جو ہے وہ ایک جنرل طور پر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی میں اسے یوں سمجھاتا ہوں کہ آپ سب یا ہم سب آدم ذات ہیں، لیکن آپ میں سے میں خدا کا بیٹا ہوں، میں ایماندار ہوں، تو میں سن آف مین ہوں، میں ابن آدم ہوں. یعنی میں انسانوں میں سے ایک یونیک پہچان رکھتا ہوں. اور ایک اور بات یہاں پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں ابن آدم ہوں تو کیا میں آدم ذات نہیں ہوں؟ یہ سوال ہے. تو میں اس کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں. میں اصل میں بہت سے انسانوں کی بھیڑ میں سے میں ابن آدم ہوں، میں خدا سن آف مین ہوں، ابن آدم ہوں. یونیک جو ہے وہ میری پرسنالٹی ہے، ایک پہچان ہے. آپ سے میں منفرد ہوں، میں ابن آدم ہوں. لیکن میں آدم ذات کیسے ہوں؟ آدم ذات اس لیے ہوں کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں. یعنی میں آدم ذات ہوں بحیثیت بشر. لیکن ابن آدم جب میں کہوں گا تو میں تمام انسانوں میں سے خود کی پہچان جو ہے وہ منفرد اور یونیک ٹھہراؤں گا. اور یسوع مسیح نے ابن آدم کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا. اچھا، اب یہاں پر جو چیز ہے وہ میں نے بتایا کہ ابن آدم جو ہے وہ اسپیسیفک اور آدم ذات جو ہے وہ ایک جنرل طور پر ہم اسے لیتے ہیں. کیونکہ جب ہم حزقیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر 12 دفعہ جو ہے نبی کو آدم ذات کہہ کر پکارا گیا ہے. یعنی خدا کہتا ہے کہ تو کیا چیز ہے، یعنی تو ایک عام انسان ہے، اور انسان کی اہمیت میرے سامنے کیا ہے. یعنی میں بلند مرتبہ رکھتا ہوں اور انسان جو ہے وہ مجھ سے کم تر ہے. یہ انسان کی ایک حیثیت ہے. لیکن ابن آدم میں وہ ایک یونیک جو ہے وہ پرسن بن جاتا ہے. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ حوالہ پڑھیں عبرانیوں 2 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت. عبرانیوں 2 باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت. عبرانیوں 6 باب اس کی 2 باب 6 سے 7 آیت. بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا کہ کیا انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے. تو نے اپنے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا. تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا. آمین. آمین. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کے خط میں کہ یعنی ورڈ آدم ذات استعمال ہوا ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ انسان یونیک پرسن نہیں، اب میں آدم ذات ہوں. یعنی خدا کہتا ہے کہ آدم ذات تو فرشتوں سے بھی کم ہے، تو مجھ سے تو فرشتے بھی کم ہیں.
और तू फरिश्तों से भी कम है। लेकिन जब हम मत्ती 18वें बाब की 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? जी तिलावत कीजिएगा। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 11। मत्ती 18वें बाब की 11वीं आयत की तिलावत कीजिएगा। मत्ती 18 बाब उसकी 11 आयत। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उसे और निजात देने आया है। आमीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आदमजात तू क्या चीज है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर जो है ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इब्ने आदम और आदमजात किस तरह से एक भी हो जाते हैं और अलग तौर पर क्या पहचान रखते हैं। तो एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहिए, जब हम मत्ती की अंजील 16वें बाब की 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि इब्ने आदम को लोग क्या कहते हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और कोई एलिया कहता है। उसने कहा तुम क्या कहते हो? तो शमौन ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इब्ने आदम ने इस जवाब को मुबारक ठहराया कि ये आसमान से रूह ने तुम्हारे दिल में ये बात डाली है कि इब्ने आदम जो है वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यहाँ पर एक और बात इसके साथ मैं आपको बताए देता हूँ। लूका 3 बाब 38वीं आयत में क्या लिखा है, जब वहाँ पर यीशु के नसबनामे को हम पढ़ते हैं। मत्ती में भी नसबनामा है लेकिन मैं लूका के नसबनामे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि सेत आदम का था और आदम किसका था? खुदा का था। आमीन। तो यहाँ पर क्या है, यीशु मसीह इब्ने आदम है, यानी इब्ने आदम जो है वो खुदा का है। हालेलुया। तो यहाँ पर यानी सन ऑफ मैन इज सन ऑफ गॉड। सन ऑफ मैन इज सन ऑफ गॉड। लूका 3 बाब 38वीं आयत में लिखा है। तो यहाँ पर ये बात बताने का मकसद ये था, इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़ें, कि आप इस बात को जान लें कि जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो यीशु मसीह के वसीला से, उसके नाम के वसीला से खुदा बाप के बेटे कहलाते हैं। यानी आज मैं इब्ने आदम हूं और आप भी इब्ने आदम हैं, और जो इब्ने आदम है वो खुदा का है। याद रखिएगा, ये खुदा का कलाम बयान करता है। अच्छा, अब मैं बढ़ता हूं फरिश्तों की जानब, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ आपको आपकी अहमियत और आपकी अहमियत के मुतल्लिक़ बता रहा था कि जब आप भी खुदा के बेटे कहलाते हैं, सन ऑफ यू आर सन ऑफ मैन इज सन ऑफ गॉड। जी आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों 1 बाब 4 है। अब मैं फरिश्तों की जानब बढ़ता हूँ। इब्रानियों 1 बाब उसकी 4 आयत। और फरिश्तों से उसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे फजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से अफजल होगा वर्ड, अफजल पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है। आमीन। तो मेरे चीज़ों, यहाँ पर हम इब्रानियों 1 बाब 4 आयत में पढ़ते हैं कि इब्ने आदम यीशु मसीह जो हैं वो फरिश्तों से क्या हैं? अफजल हैं। जी 1 बाब 6 आयत। यूहन्ना 1 बाब उसकी 6 यूहन्ना ने इब्रानियों 1 बाब 6 आयत। सॉरी इब्रानियों। और जब पलोटे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। आमीन। तो यहाँ पर यीशु मसीह की बात हो रही है कि यीशु मसीह जो इब्ने आदम है वो फरिश्तों से क्या है? अफजल है। यानी फरिश्ते जो हैं वो इब्ने आदम के ताबिया हैं और
पे लौटे को जब वो इस दुनिया में लेकर आया, यीशु मसीह इब्ने आदम को, तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि तू कहता है खुदा के सब फरिश्ते उसे क्या करें, सिजदा करें। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, फरिश्ते जो हैं वो किसे सिजदा कर रहे हैं, यीशु मसीह को, इब्ने आदम को। वो पे लौटा है, वो क्या है, पे लौटा है। तो यहाँ पर जो है फरिश्ते यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, इब्ने आदम को सिजदा कर रहे हैं। यानी फरिश्ते किसके ताबिया हैं, ईमानदारों के भी ताबिया हैं। क्यों ईमानदारों के ताबिया हैं, क्योंकि इब्ने आदम यीशु है और यीशु पर आप ईमान रखते हैं और आप ईमान के वसीला से खुदा बाप के फर्जंद हैं और खुदा बाप के फरिश्ते आपके ताबिया हैं, वो आपको सिजदा करते हैं। जी, इब्रानियों 1:13 आयत। इब्रानियों 1 उसकी 13 आयत। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव के तले की चौकी ना कर दूं। आमीन। तो यहाँ पर इब्रानियों 1:13 आयत में क्या मजीद लिखा है कि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ। किससे कहा गया, यीशु मसीह से, इब्ने आदम से, इब्ने खुदा से कहा गया कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ। क्योंकि आप भी यीशु पर जब ईमान रखते हैं, खुदा बाप के फर्जंद बनते हैं, तो आप भी तख्त पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। फरिश्ते नहीं करेंगे, फरिश्ते आपके ताबिया हैं, आपका रुतबा फरिश्तों से बुलंद है। खुदा बाप के फरिश्ते आपके फरिश्ते हैं। इब्रानियों 1:14 आयत की तिलावत कीजिएगा। इब्रानियों 14 आयत, पहला बाप उसकी 14 आयत। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। आमीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है इब्रानियों 1:14 आयत में कि फरिश्ते वो खिदमत गुजार रूहें हैं जो निजात पाने वालों और मिरास पाने वालों की खातर खिदमत के लिए भेजी जाती हैं। तो मिरास कौन पाते हैं, जो यीशु पर ईमान रखते हैं, खुदा बाप के बेटे हैं, यीशु को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, खुदा बाप के फर्जंद ठहरते हैं, इब्ने आदम हैं, वो मिरास पाते हैं, निजात पाते हैं। और फरिश्ते आपकी खिदमत करते हैं, यानी आप फरिश्तों से ज्यादा अफजल हैं। यीशु फरिश्तों से ज्यादा अफजल था, मूसा से ज्यादा अफजल था, एलिया से ज्यादा अफजल था, हनूक से ज्यादा अफजल था। तो क्या है, फरिश्ते आपके ताबिया हैं, बाप के फरिश्ते आपके फरिश्ते हैं। जी, जब हम मत्ती 4 बाब और उसकी 11वीं आयत की तलावत करते हैं तो वहाँ पर बियाबान का हमें जिक्र मिलता है। तो वहाँ पर क्या लिखा है, आजमाने के बाद अबलीस जब चला गया, अबलीस जब चला गया तो उसकी खिदमत फरिश्ते करने लगे। क्या करने लगे, खिदमत फरिश्ते करने लगे। आप फरिश्तों के ताबिया नहीं हैं, आप फरिश्तों की खिदमत नहीं करते, फरिश्ते आपकी खिदमत करते हैं, फरिश्ते आपका हुक्म मानते हैं। क्यों, क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि तूने इंसान को अपने से कुछ ही कमतर बनाया है। ये फरिश्तों से तो नहीं कहा गया, यानी खुदा के बाद जो रुतबा है वो उस ईमानदारों का है, फरिश्तों का नहीं है। लेकिन आज लोग परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं खुदा के तो फरिश्ते होते हैं, हमारे कौन से फरिश्ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बाप के फरिश्ते आपके फरिश्ते हैं। अगर बाप की कोई शॉप हो और उसने 10 मुलाजिम रखे हों, सपोज एक मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर बाप का बेटा उसी शॉप पर जाएगा तो वो तमाम 10 मुलाजिम जो हैं वो उसके बेटे के भी ताबिया होंगे, उसके बेटे का रुतबा
उन मुलाजमों से कम होगा, क्योंकि उसके बाप के मुलाजम बेटे के भी मुलाजम हैं। बाप बेटे को पाकिस्तान में भेजता है, तो पाकिस्तान के मजदूर जो हैं वो ज्यादा अफजल हैं कि बेटा अफजल है? हालेलुया। मजीद पहला पतरस 3 बाब और उसकी 22वीं आयत की तिलावत कीजिएगा। पहला पतरस 3 बाब और उसकी 22वीं आयत की तिलावत कीजिएगा। 3 बाब 22वीं आयत। पहला पतरस 3 बाब उसकी 22 आयत। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबिया की गई हैं। आमीन। किसके ताबिया की गई हैं? यीशु मसीह के, इब्ने आदम के ताबिया की गई हैं। तो आप क्या हैं? आप भी तो यीशु के वसीला से, उसके नाम पर ईमान लाने के वसीला से खुदा बाप के ताबिया हो जाते हैं, और फरिश्ते आपके ताबिया हैं। लिखा है कि वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा, और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबिया की गई। हालेलुया। यानी फरिश्ते आपके ताबिया हैं, इख्तियार आपके पास है, कुदरत आपके पास है। तो यहाँ पर मजीद आखिर में जब हम पढ़ते हैं पैदाइश 18वें और 19वें बाब को, तो वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ में इब्राहिम का जिक्र मिलता है। इब्राहिम के पास 3 मर्द आए, जिनमें से 2 फरिश्ते और एक खुदावंद था। तो वहाँ पर जब वो सदूम और अमूरा, बहरहाल शॉर्ट बात करूँगा बामकसद, कि वहाँ पर जो है वो जब जाने लगे तो 2 फरिश्ते सदूम और अमूरा को बर्बाद करने के लिए चले गए। तो इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप था, बरकत उसे दी गई। तो वहाँ पर खुदावंद जो है वो इब्राहिम के पास ठहर गया और क्या कहा कि इसे बताना लाजम है। ये बात नहीं कि मैं ऐसे कोई बात जो है वो पर्दे में रखूं। यानी खुद ईमानदार बेटा जो है, कोई भी ईमानदार बेटा और बेटी जो है वो खुदा के बाद रुतबा रखता है। वहां पर खुदा ईमानदार को फरिश्तों से ज्यादा अफजल करार देता है। फरिश्ते उसके हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेटा है, वो घर का मुख्तार है। कुदरते, इख्तियारात, फरिश्ते उसके ताबिया हो जाते हैं। वहां पर फिर एक और चीज हम देखते हैं कि गलीतियों के खात में क्या लिखा है? ईमान वाले जो हैं वो किसके फर्जंद है? इब्राहिम के फर्जंद है, और वादा के मिरास के हकदार हैं। तो वहां पर क्या है? वहां आप फरिश्तों से ज्यादा अफजल हैं, फरिश्ते आपके ताबिया हैं। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सदूम और अमूरा के लोग, तो क्या फरिश्ते उनके भी ताबिया थे? नहीं, फरिश्ते उनसे ज्यादा जोरावर थे, क्योंकि वो बेईमान जनाकार थे, वो गुनाहगार थे। तो आज मेरे अजीजों, फरिश्ते जो बाप के फरिश्ते हैं, बाप के फरिश्ते आपके अपने फरिश्ते हैं, वो आपके ताबिया हैं। आप मिकाएल, आप दुआ करें, मिकाएल आपके लिए जंग करेगा। आप रूम में किसी से मुलाकात करें, आप पैगाम भेजे, जबराइल आपका पैगाम लेकर जाएगा। दानियल ने दुआ की, दुआ करने वाला बड़ा है कि जो लेकर जा रहा है वो बड़ा है। अगर आप दुआ करें तो मिकाएल आपके लिए जंग करे। तो मिकाएल से बड़े आप हैं, क्योंकि आपके कहने पर वो जा रहा है। हालेलुया। तो यही बात है कि आपके जो अपने फरिश्ते हैं वो असल में खुदा बाप के फरिश्ते आपके फरिश्ते हैं, और आप खुदा बाप के फरिश्तों से ज्यादा अफजल हैं, और वही फरिश्ते आपके हो जाते हैं। लेकिन जब आप गुनाहगार होते हैं, आप इख्तियार को नहीं समझते, ख्वाह वो कोई भी है, तो फिर वही फरिश्ते जो हैं वो तलवार लेकर आपकी ही गर्दन उड़ाने के लिए आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कोई मकाम नहीं है, आपने सारी उम्र अपने इख्तियार को नहीं समझा। तो मेरा ईमान है कि आज अपने मकाम को आप समझेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम, आमीन।